And now we are going to learn the second type, that is design of shaft by using torsional formula. So in this type of numerical, I'm going to teach you one of the most frequently asked question in my next video. So go start watching. So starting with this numerical is here. Hello students, so this is the type 2 numerical. This is again a type of torsion unit, that is second type, design of shaft. Okay, so design of shaft numerical is most frequently asked numerical on Pune University. So this is one of the important question to get learned. So starting with the numerical first, read it. A solid shaft in a rolling mill transmit a 20 kilowatt at 120 rpm. Okay, 20 kilowatt is given us, that is P is given to us 20 kilowatt, and 120 rpm, that is N, is given to us, capital N. Determine the diameter of the shaft if the shear stress is not exceed 40 MPa. इसके पहले न्यूमेरिकल में हमने पढ़ा था कि हमें shear stress find out करना था, but in this numerical we have given us tau value, that is 40 MPa, and angle of twist is 6 degree. Okay, so theta is also given to us, that is theta. In a length is also given to us L, that is 3 meter, that is equal to 3000 mm, and also G is given to us. So what is the formula for torsion? This is T by J, G theta upon L, and tau bar R. Tau is given to us, radius we can calculate, but we have not given with the diameter. Okay, G is given to us, theta is given to us, L is given to us. So what we are going to calculate? We have to calculate D here. Okay, इस क्वेश्चन हमें D find out करना है. So starting with the data given, data हमें दिया है P value, तो इस 20 किलो न्यूटन. ओके, कन्वर्ट किया किलो न्यूटन को न्यूटन वैट में किया, किलो वैट को कन्वर्ट किया वैट में. दिस इज इंटू 10⁻3, जस्ट एड इट, एंड देन N is given to us, that is 120 rpm. Tau is given is 40 Newton per mm square, that's MPa. Theta is 6 degree, and we have to use the radian value while calculating all the dimensions. That is radian convert करने के लिए हमें करना होता है पाई बाय 180. डिग्री में जो भी वैल्यू दी रहेगी हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, उसके बाद ही वो फॉर्मूलास में हम ऐड करेंगे जो भी वैल्यू थीटा की रहेगी. ओके, तो थीटा जो वैल्यू दी है डिग्री में दी है, उसको कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 180 से, एंड देन L is given to us in meter, converted into mm, and G is given to us in GPa, converted into MPa, that is just add 10⁻3 into it. What we have to calculate? We have to calculate the D over here. Okay, starting with the solution. As power is given to us, okay, क्वेश्चन के स्टार्ट में ही हमें पावर दिया हुआ है. सो बाय यूजिंग पावर फॉर्मूला P is equals to 2 pi NT upon 60. Okay, 2 is given to us, pi is given to us, N is given to us, that is 120 rpm. T is not given to a torque हमें दिया है क्या? नहीं, 60 दिया है. तो हम ये P हमें दिया हुआ 2, जैसे कि वैसे ही pi N, T is not given to us. So by using this formula we can calculate the torque value. Okay, so this is the torque value we have right now, calculating after all these things. Now to find out diameter based on shear stress. Okay, पहले हम diameter find out करेंगे shear stress के बेस पे. So shear stress के बेस पे formula हम ला रहे हैं T by J tau by R. Okay, this is the shear stress depending on the formula. So T is we have calculated 159.55, ये हमने कैलकुलेट किया जस्ट अभी. J हमें निकालना है, J का फॉर्मूला होता है पाई बाय 32 इंटू डी रेज टू पावर 4, एंड टाउ इज गिवन टू अस, टाउ इज shear stress हमें डायरेक्टली दिया है डेटा गिवन में. R क्या है? रेडियस क्या होता है? डायमीटर बाय 2. ओके, सो हमें इससे निकलेगा हमारा डायमीटर मेन. तो ये टर्म जैसे कि वैसी रहेगी. अब ये डी रेज टू पावर 4 है, ये डी है, ये गेट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा D3. ओके, उसके बाद 32 डिवाइड में, तो ये ऊपर चल जाएगा इनटू में. ओके, ये डिवाइड में 2, ये भी इनटू चल जाएगा 40 के, एंड देन पाई यहाँ पे है डिवाइड में, ये यहाँ पे चल जाएगा इनटू में. दिस इज व्हाट 1595 इंटू 32, बिकॉज ये डिवाइड में है तो ऊपर चला गया 32, डी क्यूब नीचे के वैसे ही, देन 2 जो डिवाइड में था वो ऊपर चला गया इंटू में, अगेन पाई इज डिवाइडेड में था यहाँ पे, वो इंटू में आ गया. बाय कैलकुलेटिंग ऑल दिस यू विल गेट द आंसर फॉर डी क्यूब, दैट इज डी क्यूब. टेक द क्यूब रूट ऑफ दिस आंसर, यू विल गेट द वैल्यू फॉर डी, दैट इज 58.73 mm. अब ये डायमीटर हमने निकाला है जो shear stress के फॉर्मूले से. अभी डायमीटर हमको निकालना है एंगल ऑफ ट्विस्ट के फॉर्मूले से. ओके, एंगल ऑफ ट्विस्ट का फॉर्मूला क्या है? T by J इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L. ओके, सो T वैल्यू हमने कैलकुलेट की ऑन द स्टार्टिंग पे,
जे इसका फॉर्मूला होता है पाई बाय 32 रेज़ टू पावर 4। जी हमें डेटा गिवन में दिया हुआ है। थीटा हमने कैलकुलेट किया हुआ है रेडियन में। थीटा इज ऑल्सो गिवन टू अस एंड देन लेंथ इज ऑल्सो गिवन टू अस, दैट इज 3000। सो अगेन कैलकुलेटिंग विद द सेम फॉर्मूला हमें मिलेगा आंसर फॉर डी रेज़ टू पावर 4। डी रेज़ टू पावर 4 का आंसर हमें आता है ये आंसर को हमको 2 टाइम्स हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 48.64 mm। तो जो भी डायमीटर हम निकाला, हमने पहले ये डायमीटर निकाला 58, दूसरा निकाला 48, जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी वो ही हम यहाँ पे लेंगे। सो ग्रेटर वैल्यू ऑफ डायमीटर इज टेकन। ओके, तो 2 बार कैलकुलेट निकालेंगे और जो भी ग्रेटर डायमीटर आएगा वैल्यू वो हम कंसिडर करेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, वेरी इजी टू सॉल्व। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू वेरी मच।